Hello and welcome back to Dronacharya IS YouTube channel. You're watching Daily Current Analysis covering 14th May 2022. इस वीडियो लेक्चर में हम आज के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे. We are going to discuss the topics about Shanghai Cooperation Organization SCO's regional anti-terror structure, followed by mRNA vaccine, Gaganyaan mission, and then there is early onset of Indian monsoon. We'll also cover this topic, followed by India-Nepal bilateral relation. So let's begin with it. तो शुरुआत करते हैं शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर से. So there are counter-terrorism teams from Russia, China, Pakistan, and Central Asian countries. These teams will gather in Delhi on this weekend ahead of Shanghai Cooperation Organization's regional anti-terror structure meeting, which is hosted by India from May 16th to 19th. तो इसे लेकर इंडिया में मीटिंग होने वाली है एंड May 16 से 19 तक. So it is important for us to know what is Shanghai Cooperation Organization's regional anti-terrorist structure. So it is a permanent body of SCO and it is intended to facilitate the coordination and interaction between the SCO member states. जो शंघाई कॉरपोरेशन मेंबर स्टेट्स हैं, when it comes to fight against terrorism, extremism or separatism, इन केसेस में रीजनल एंटी टेरर स्ट्रक्चर एक परमानेंट बॉडी बनती है जो कि SCO मेंबर कंट्रीज़ के बीच में कोऑर्डिनेशन और इंटरैक्शन फैसिलिटेट करती है ताकि जो मेंबर कंट्रीज़ हैं दे कैन फाइट अगेंस्ट इट. सो द मेन फंक्शन ऑफ इट इज़ बेसिकली कोऑर्डिनेशन एंड इंफॉर्मेशन शेयरिंग. So India is also member of SCO and rather SCO's regional anti-terror structure. So India is also actively taking part in this. And India की जो permanent membership है, this would enable it to generate greater understanding among members for its perspective as well. After this, we need to know what is SCO. SCO की बात करें तो ये एक multilateral association है एंड इसे इस्टेब्लिश किया गया था ताकि सिक्योरिटी को इंश्योर किया जा सके एंड एक जो यूरेशियन रीजन है वहाँ पे स्टेबिलिटी मेंटेन की जा सके. एंड इट envisions that joining forces to counteract all the emerging challenges and threat and enhance trade as well as cultural humanitarian cooperation. तो SCO को 2001 में क्रिएट किया गया था ताकि ये जो यूरेशियन रीजन है यहाँ पे जो भी चैलेंजेस आएंगे, जो भी थ्रेट्स आएंगे, उन्हें एनहांस किया जा सके, ट्रेड रिलेशंस को एनहांस किया जा सके, कल्चरल और ह्यूमैनिटेरियन कोऑपरेशन को इंक्रीज किया जा सके. सो बिफोर द क्रिएशन ऑफ SCO in 2001, this was basically the Shanghai Five. This was called as Shanghai Five. So there were actually 5 countries which were included in this: Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, plus Russia and China. So these 5 countries were together called as Shanghai Five. Then in 1996, Shanghai Five emerged from a series of border demarcation and demilitarization talks with 4 former Soviet republics held with China, basically to ensure that there is stability along the borders. And following the accession of Uzbekistan to the organization in 2001. 2001 में उज़्बेकिस्तान जब शंघाई 5 का मेंबर बनता है तो शंघाई 5 से नेम चेंज करके शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन रखा जाता है. एंड देन इन 2002 द शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशंस चार्टर वाज साइंड एंड दिस केम इनटू फोर्स इन 2003. It is important to note that the SCO's official languages are Russian and Chinese. Shanghai Cooperation Organization has 2 permanent bodies. One is SCO's Secretariat, it is in Beijing, and the Executive Committee of Regional Anti-Terrorist Structure, this is in Tashkent. If we talk about the chairmanship of SCO, this goes by rotation for a year by member countries. तो ये rotation में जाती है. India and Pakistan became members of SCO in 2017.
तो जिससे कि SCO के मेंबर कंट्रीज़ कौन कौन से हो गए? रशिया प्लस चाइना याद रखेंगे, कज़ाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, India and Pakistan. And even recently, Iran has also bid to become full member of SCO, and this bid has been approved. Now, SCO is important for India. If we talk about the advantages, so the first advantage comes in the form of regional security. तो SCO को ज्वाइन करते ही, बिकॉज इंडिया इज़ नाउ पार्ट ऑफ SCO, तो इससे जो यूरेशियन सिक्योरिटी ग्रुप है, इंडिया इसका एक इंटेग्रल पार्ट बन जाता है. तो इससे जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस हैं जो कि लेट्स से रिलीजियस एक्सट्रीमिज़म से आती हैं या फिर जो टेररिज्म से आती हैं, उसे सेंट्रीफ्यूगल न्यूट्रलाइज किया जा सकता है. तो रीजनल सिक्योरिटी को मेंटेन रखने में ये एक बड़ा स्टेप है. देन इफ वी टॉक अबाउट रीजनलिज्म, तो SCO इज़ वन ऑफ द फ्यू रीजनल स्ट्रक्चर जिसमें जिसका पार्ट इंडिया बना है. Given a decline in its engagement with SAARC, BBIN initiative, जहाँ पे बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल ये कंट्रीज़ प्रेजेंट हैं, तो ये एक रीजनल स्ट्रक्चर को भी एम्ब्रेस करता है. मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, इस कॉरपोरेशन में, यहाँ पे जो संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, तो जो कॉरपोरेशन हो रही है वो कुछ क्रिटिकल एरियाज में है, लाइक एनर्जी, बिल्डिंग, ट्रेड एंड ट्रांसपोर्टेशन, लिंक्स, and dealing with traditional and non-traditional security threats. So these areas of cooperation, they are very critical and they are very important. After this, if we talk about, so the another important advantage is the connect with Central Asia. Now, being a member of SCO, it provides India a channel for its outreach. We can now outreach the Central Asian countries with our trade and strategic ties. India is also a potential platform. See, SCO is a good platform for India in terms of India's Connect Central Asia policy. कुछ ही टाइम पहले Central Asia policy न्यूज़ में था. Then we discussed all of this. So the foundation of India's economic outreach to Central Asia, it is based on its 2012 Connect Central Asia policy. बहुत important है, याद रखिएगा. सेंट्रल एशिया से कनेक्ट करने की जो पॉलिसी है, इसमें 4 इंपॉर्टेंट सीज आते हैं. वन इज़ कॉमर्स, कनेक्टिविटी, कंसुलर एंड कम्युनिटी. दीज आर द 4 important C's between India and Central Asia. And see, why are we talking about Central Asia? Central Asia में 5 countries आते हैं. Can we try to name all these countries? These countries are Kazakhstan, Kyrgyzstan, Uzbekistan, Tajikistan एंड तुर्कमेनिस्तान. एंड अगर आप देखें तो SCO के मेंबर कंट्रीज़ कौन कौन से हैं? SCO के मेंबर कंट्रीज़ में कौन कौन से सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ हैं? कज़ाकिस्तान है, किर्गिस्तान है, ताजिकिस्तान है, उज़्बेकिस्तान है. देयर इज़ ओनली वन सेंट्रल एशियन कंट्री विच इज़ नॉट मेंबर ऑफ SCO, विच इज़ Turkmenistan. So leaving Turkmenistan, rest of all the Central Asian countries, they are part of SCO. याद रखिए, तो सेंट्रल एशिया डोमिनेट कर रहा है यहाँ पे. तो इंडिया के लिए हमारी जो कनेक्ट एशिया पॉलिसी है उसे एनहांस करने के लिए ये काफ़ी अच्छा पोटेंशियल प्लेटफॉर्म है. फर्दर, एक्नॉलेजिंग द स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस विच इज़ कमिंग फ्रॉम दिस रीजन एंड SCO, इवन प्राइम मिनिस्टर आर्टिकुलेटेड द फाउंडेशनल डायमेंशन ऑफ यूरेशिया बीइंग सिक्योर. याद रखिए, यूरेशिया सिक्योर है. अब यहाँ पे सिक्योर का मतलब क्या है? S फॉर सिक्योरिटी ऑफ आवर सिटीजन्स, E इज़ फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट फॉर ऑल, C इज़ फॉर कनेक्टिंग द रीजन, U इज़ टू यूनाइट आवर पीपल, R इज़ फॉर रिस्पेक्ट फॉर सॉवरेनिटी एंड इंटेग्रिटी, एंड E इज़ फॉर इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन. देखिए, ये जो चीज़ें होती है ना, ये आपके आंसर की वैल्यू एडिशन कर देती हैं. तो जब भी SCO की बात आती है, वहाँ पे यूरेशिया का क्या रोल है और यूरेशिया के लिए सिक्योर टर्म का मतलब क्या है, ये चीज़ें आपके आंसर को बाकियों के आंसर से अलग बनाती हैं. सो डू नोट दिस पॉइंट. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सिक्योर? द फाउंडेशनल डायमेंशन ऑफ यूरेशिया. देन when we talk about the members of SCO, see, Pakistan is also member and China is also member. So SCO is providing India a forum where we can constructively engage with both China and Pakistan
especially in terms of our regional context and India's security interest as well. अब एडवांटेजेस तो हैं ही, लेकिन एडवांटेजेस के साथ चैलेंजेस भी आते हैं. अब बड़ा चैलेंज तो ये है दैट देर इज़ एब्सेंस ऑफ डायरेक्ट लैंड कनेक्टिविटी. अब इंडिया ने अपनी इंगेजमेंट एक्सपैंड कर दी है विद यूरेशिया, सेंट्रल एशिया, बट स्टिल बिकॉज देर इज़ लैक ऑफ लैंड कनेक्टिविटी, तो ये एक तरीके का स्ट्रेटेजिक डिनायल रह जाता है. स्पेशली वी टॉक अबाउट इंडिया एंड अफगानिस्तान. इंडिया, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, यहाँ तक हमारे पास एक स्ट्रेटेजिक डिनायल इतने में ही हमें देखने के लिए मिल जाता है. तो ये कनेक्टिविटी ना हो पाने से देर इज़ हैम्पर्ड द डेवलपमेंट ऑफ एनर्जी टाइज बिटवीन द इंडिया एंड सेंट्रल एशिया. सेंट्रल एशिया को मैं हाइड्रोकार्बन रिच रीजन भी बोल सकती हूँ, बट बिकॉज देर इज़ नो लैंड कनेक्टिविटी, so this is causing that impediment. Then again, one more important challenge that India needs to navigate is the growing Russia-China convergence. See, this is what we are seeing right now as well. If you see the current domain of Russia-Ukraine war, so you can see that the Russia and China, they are converging together. So this convergence is growing. So this is one of the major factor for Russia pushing India's inclusion into SCO as well. And this is to even balance China's power also. Because there is difference over BRI. BRI is Belt and Road Initiative. This is China's Belt and Road Initiative. India has openly made its opposition to the BRI. And all the other members of SCO, they have embraced these Chinese project. ये एक issue है. Then lastly, India-Pakistan rivalry. How can we forget it? SU members in past have also expressed the fear of organization being held hostage, to India's and Pakistan's adversarial relationship, and the fears are likely to worsen in the recent times. Hopeful with the new regime the things will change. So what lies ahead? See, we need to improve our connectivity with Central Asia. And how can we do that? The answer lies with sea only. See, when we talk about Central Asia, there are lots of seas here. Another sea is Chabahar Port. India's entry into the Ashgabat Agreement, this should also be utilized for stronger presence in Eurasia. Beside this, we need a clear focus to operationalize this international north-south transport corridor also, INSTC. Improving relations with China. अब यहाँ पे जो conflicting parties हैं, how can they coexist? We need to set up a modus vivendi. What is modus vivendi? When the conflicting parties, they choose to coexist peacefully. Very hard, very challenging thing. But for 21st century, we talk about, if we see it through the lens of Asia's century, as it is said, the 21st century is Asia's century. So we need to set up this modus vivendi, where there are agreements following, which is allowing these conflicting parties to coexist peacefully. And then again, it is useful to strengthen the military cooperation as well, especially if we see the increasing terrorism in this region. So it is imperative for SCO countries to develop a cooperative and sustainable security framework and make the regional anti-terrorist structure more effective. So that is all for SCO's regional anti-terrorist structure. Moving ahead, our next news article is related to mRNA vaccine. Again, mRNA vaccine is in news as the Center for Cellular and Molecular Biology, CZMB, has established the proof of principle for the first indigenous mRNA vaccine technology coming from a scientific institution in India. तो दोबारा mRNA वैक्सीन की जो टेक्नोलॉजी है इसे लेकर प्रूफ ऑफ प्रिंसिपल एस्टैब्लिश किया है बाय CCMB. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो व्हाट आर mRNA vaccine. See, mRNA is messenger RNA. Okay, so messenger RNA vaccine. तो जो messenger RNA vaccine है ये हमारी बॉडी में ट्रिक करती है. कैसे? It basically tricks our body into producing some of the viral proteins itself.
ये हमारे सेल्स को टीच करता है कि किस तरह से प्रोटीन बनाना है, जिससे कि हमारी बॉडी में ही एक इम्यून रिस्पॉन्स हमारी बॉडी के इनसाइड ट्रिगर हो सके। सो दिस इज डन बाय यूजिंग mRNA, मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर आरएनए क्या है? ये एक मॉलिक्यूल है जो कि डीएनए को इंस्ट्रक्शंस देता है। डीएनए को इंस्ट्रक्शन कौन देगा? mRNA। वो इंस्ट्रक्शंस लेने के बाद डीएनए स्टार्ट्स इट्स एक्शन। तो अगर मैसेंजर ही ये मैसेज देगा कि भाई ऐसे प्रोटीन्स बनाओ जो कि वायरल प्रोटीन्स होंगे, बॉडी में वायरल प्रोटीन्स आ गए, वायरस नहीं आया, बॉडी ने खुद ब खुद वायरल प्रोटीन बनाया और उससे डील करने के लिए इम्यून रिएक्शन हमारी बॉडी में शुरू हो गया। तो इससे जो इम्यून रिस्पॉन्स है वो हमारी बॉडी में इनिशिएट हो गया। यूजुअली, नॉर्मली, inside a cell, if we talk about, the mRNA is used as a template to build a protein. mRNA is very important when it comes to building of protein. So like all the other vaccines, the mRNA vaccine will also benefit people, those who get vaccinated, by giving them protection against diseases like COVID-19. And here there is no risk of potentially getting that serious consequences of getting risk. So mRNA vaccines are newly available to public. However, researchers have been studying and working with mRNA vaccines for decades. This is not something new. कोविड-19 के परस्पेक्टिव में mRNA वैक्सीन अभी आई हैं, लेकिन mRNA वैक्सीन का कॉन्सेप्ट नया नहीं है। अच्छा, अब इसे डिटेल में अगर देखें तो ये कैसे काम करता है। सो टू प्रोड्यूस mRNA वैक्सीन, साइंटिस्ट क्या करते हैं? साइंटिस्ट प्रोड्यूस अ सिंथेटिक वर्जन ऑफ mRNA। हमारी बॉडी में सिंथेटिक वर्जन mRNA का आता है, जिसमें इस तरह से कोडिंग की जाती है कि जब ये सेल के अंदर जाएगा तो ये डीएनए को इंस्ट्रक्शन देगा, और हमने इस पे इंस्ट्रक्शंस ही वो लिख दी जिससे कि इन्फेक्शियस वायरल प्रोटीन बिल्डअप होगा। तो जैसे ही mRNA वैक्सीन ह्यूमन बॉडी में डिलीवर की जाती है, सेल इसकी इंस्ट्रक्शंस को पढ़ते हैं, डीएनए इंस्ट्रक्शंस को पढ़ेगा एंड इट विल बिल्ड दैट वायरल प्रोटीन. So therefore, we are creating some of the virus molecules in our body. And these proteins are solitary. They do not assemble to form virus. So immune system detect कर लेता है कि भाई ये तो viral protein बन गया है. And they start to produce a defensive response to that. So we talk about the significance of this mRNA vaccine. See, there are two parts to our immune system. One is innate and another one is acquired. Innate immunity is all those defenses with which we were born. This is called as innate. Acquired immunity is immunity that we develop when we come in contact with the pathogens. That immunity is called as acquired immunity. जो classical vaccine molecules होते हैं, they only work with the acquired immune system. And the innate immune system is activated by another ingredient which is called as adjuvant. काफ़ी इंटरेस्टिंग है ये जानना कि जो mRNA वैक्सीन है ये एक्वायर्ड इम्यूनिटी तो देगी ही देगी, क्योंकि आप पैथोजन के कांटेक्ट में आ गए हैं, बट दिस कुड ऑल्सो ट्रिगर इनेट इम्यून सिस्टम एज वेल, विच प्रोवाइड्स एन एक्स्ट्रा लेयर ऑफ डिफेंस without the need to add the adjuvants. Lastly, it is important for know to us, what is CCMB, Center for Cellular and Molecular Biology. ये एक प्रीमियर रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है जो कि बेसिकली हाई क्वालिटी बेसिक रिसर्च एंड ट्रेनिंग करता है इन द एरियाज ऑफ मॉडर्न बायोलॉजी, एंड दिस प्रमोट सेंट्रलाइज्ड नेशनल फैसिलिटीज़ फॉर न्यू एंड मॉडर्न टेक्निक्स in the interdisciplinary areas of biology. इसे इनिशियली सेटअप किया गया था एज एन सेमी ऑटोनॉमस सेंटर in 1977 with the biochemistry division. It was on the basis of then regional research laboratory. Presently इसे Indian Institute of Chemical Technology हैदराबाद कहा जाता है. Therefore this CCBM, this is located in Hyderabad. It operates under Council of Scientific and Industrial Research, CSIR, and it is even designated as the Center of Excellence by the Global Molecular and Cell Biology Network, UNESCO. It is a very prestigious research organization. आगे बढ़ते हैं. हमारा नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल गगनयान से रिलेटेड है.
How Gaganyaan is in news? As recently ISRO, Indian Space Research Organization, has successfully carried out a static test of HS-200 solid rocket booster. गगनयान का ये पार्ट है. तो सबसे पहले समझते हैं what is HS-200 booster. See, it is designed and developed by Vikram Sarabhai Space Center in Thiruvananthapuram for over 2 years. And HS-200 booster ये basically human rated version है of the S-200 rocket booster which are used in GSLV Mark III. जो Geosynchronous Satellite Launch Vehicle Mark III है. It is also called as LVM-3. ये उसका एक ह्यूमन रेटेड वर्जन है. तो बेसिकली HS-200 बूस्टर ये एक 200 मीटर लॉन्ग बूस्टर है, कुछ 3.2 मीटर्स डायमीटर का, एंड ये वर्ल्ड्स सेकेंड लार्जेस्ट ऑपरेशनल बूस्टर है विच यूजेस सॉलिड प्रोपेलेंट्स. याद रखिएगा कि ये सॉलिड प्रोपेलेंट यूज़ करता है. ऐसी छोटी छोटी चीज़ें प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाती हैं. इट इज़ लोडेड विद 203 टन्स ऑफ सॉलिड प्रोपेलेंट. नोट आपने ये करना है कि अगर हम GSLV Mark III की बात करें, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल की बात करें, तो यहाँ पे जो सेकंड स्टेज है वो लिक्विड प्रोपेलेंट यूज़ करती है, एंड जो थर्ड है दैट इज़ इन क्रायोजेनिक स्टेट. ठीक है, तो देयर आर 3 प्रपल्शन स्टेज. सेकेंड स्टेज में लिक्विड प्रोपेलेंट यूज़ किया जाएगा और थर्ड क्रायोजेनिक स्टेज आ जाती है. अब यहाँ से गगनयान मिशन, गगनयान प्रोग्राम भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है. इफ़ वी टॉक अबाउट द एम ऑफ गगनयान, सो दिस इज़ बेसिकली एन इंडियन क्रूड ऑर्बिटल स्पेसक्राफ्ट. एंड मिशन क्या है? मिशन इज़ टू सेंड 3 एस्ट्रोनॉट्स टू स्पेस फॉर मिनिमम ऑफ 7 days बाय 2022. बट ये अब डिले हो चुका है बिकॉज ऑफ COVID-19. This will be launched by ISRO's GSLV Mark III. कंपोनेंट्स की बात करें तो इसमें एक सर्विस मॉड्यूल आता है और एक क्रू मॉड्यूल आता है. इन दोनों को मिलाकर ऑर्बिटल मॉड्यूल कहा जाता है. जो क्रू मॉड्यूल है उसमें एस्ट्रोनॉट्स होंगे और जो सर्विस मॉड्यूल होगा उसमें प्रोपेलेंट्स होंगे. आप इस मॉडल में भी देख सकते हैं 2 मॉडल हैं. एक तो प्रोपेलेंट सर्विस मॉड्यूल आ गया और जहाँ पे एस्ट्रोनॉट्स जाएंगे दैट इज़ योर क्रू मॉड्यूल. Then this is going to circle Earth at a low Earth orbit. ये low Earth orbit में circle करेगा at an altitude of 300 to 400 किलोमीटर. Earth से 3 to 400 किलोमीटर्स की दूरी पे रहेगा for 5 to 7 days. अच्छा, अब यहाँ पे Vyom Mitra is important. ISRO is going to send humanoid Vyom Mitra in unmanned Gaganyaan spacecraft ahead of this human space flight. This will basically monitor the module's parameter. So if we talk about the significance of this Gaganyaan mission, Gaganyaan program, so this will establish India as world leader in manned missions. अभी फ़िलहाल USA, China, Russia, these are the leaders in manned mission. India का ये अगर manned mission complete होता है तो इससे हम भी manned missions में world leader बन सकते हैं. This will also lead to enhancement of science and technology levels in our country. So it's a national project which involves several institutes. इसमें institutes हैं, academia participate कर रही है, industry भी involved है. This can be used even to improve the industrial growth in space, to increase private participation. This will inspire our youth. This will lead to development of technology for social benefits. This will improve our international collaborations as well. Moving ahead, our next news article is important from geography point of view. It's about the early onset of Indian monsoon. So, the southwest monsoon, they are likely to set in over Kerala on May 22nd. Normally Kerala में monsoon का onset 1 जून को होता है, लेकिन इस साल May 27th को केरला में मानसून का ऑनसेट हो सकता है. नाउ इस आर्टिकल से विल अंडरस्टैंड हाउ डज द ऑनसेट ऑफ मानसून अकर एंड व्हाट डज इट मीन.
ऐसी कौन सी कंडीशंस आती हैं जब हम कहते हैं कि मॉनसून का ऑनसेट हो गया है? क्या ये यूजुअल है या फिर ये बहुत अनयूजुअल है कि केरला में मॉनसून का ऑनसेट जल्दी होना? इससे मॉनसून के ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा? इज़ इट अ गुड मॉनसून और बैड मॉनसून? ये हम यहाँ से समझेंगे। तो अगर रियलाइज़ किया जाए, सो दिस विल बी द फर्स्ट टाइम सिंस 2009 that monsoons are arriving over Kerala as early as May 27th 2009 के बाद ये पहली बार हो रहा है। As per the date which are maintained by the IMD department, ये 2009 के बाद पहली बार हो रहा है। So IMD ने एक recent bulletin रिलीज़ किया जिसमें बताया गया कि भाई इस बार मानसून जल्दी आ रहे हैं, 4 days अर्ली मानसून पहुंच रहे हैं। एंड मानसून का जो अराइवल है ओवर साउथ अंडमान सी, दैट इज़ एक्सपेक्टेड टू बी विद इन नेक्स्ट 2 to 3 days। एंड जो क्रॉस इक्वेटोरियल विंड्स हैं वो भी काफ़ी इन्हांस हो चुकी हैं। कंडीशंस आर बिकमिंग फेवरेबल फॉर द एडवांस ऑफ साउथ वेस्ट मानसून इन साउथ अंडमान सी एज वेल। जो निकोबार आइलैंड्स हैं, जो साउथ ईस्ट बे ऑफ बंगाल है, वहाँ पे कंडीशंस फेवरेबल हैं। अंडमान सी के लिए जो अराइवल है वो May 21 को ही हो जाएगा एंड केरला के लिए May 27 को अराइवल हो सकता है। एंड जब भी हम मानसून का ऑनसेट की बात करते हैं, सो व्हेन इट कम्स ओवर केरला, इट मार्क्स द बिगनिंग ऑफ दैट 4-month लॉन्ग साउथ वेस्ट मानसून सीजन इन इंडिया। एंड मानसून आर सो इम्पॉर्टेंट दैट इट ब्रिंग्स 70% ऑफ द कंट्रीज रेनफॉल। तो ऑनसेट ऑफ द मानसून ये इंडिया के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट डेट है, स्पेशली फॉर इंडियाज़ इकोनॉमिक कैलेंडर। लेकिन अकॉर्डिंग टू IMD, जो मानसून का जब ऑनसेट होता है तो काफ़ी बड़े लेवल पे ट्रांजिशन हो रहा होता है इन द लार्ज स्केल एटमॉस्फेरिक एंड ओशन सर्कुलेशन। एंड डिपार्टमेंट ऑनसेट तभी अनाउंस करती है देयर आर सम न्यूली डिफाइंड एंड मेजरेबल पैरामीटर्स। इन पैरामीटर्स को डिपार्टमेंट ने 2016 में अडॉप्ट किया था। तो इस आर्टिकल में हम समझेंगे कि व्हाट आर दोज पैरामीटर्स जिनके बेसिस पे IMD डिपार्टमेंट ऑनसेट ऑफ द मानसून डिक्लेयर करता है। बेसिकली रेनफॉल की कंसिस्टेंसी, एक पर्टिकुलर एरिया में उसकी इंटेंसिटी, विंड स्पीड, ऐसे कुछ फैक्टर्स हैं जिनको IMD डिपार्टमेंट यूज़ करता है। फर्स्ट फैक्टर इज़ रेनफॉल। IMD ऑनसेट ऑफ द मानसून तब डिक्लेयर करेगा if at least 60% of the 14 designated meteorological stations in Kerala and Lakshadweep, they record at least 2.5 millimeters of rain for 2 consecutive days at any time after May 10th. तो कुछ 14 ऐसे स्टेशंस हैं, मिनिकॉय, अमनी, थिरुवनंतपुरम, पुनालार, कोलाम, अलापुजा, कोटायाम, कोची, थ्रिसुर, like this, they are 14 stations. तो May 10th के बाद अगर इन 14 stations में से 60% ऐसे stations हैं जहाँ पे रेनफॉल हुई for at least 2 consecutive days and at least for 2.5 millimeters, ऐसी केस में इससे इतनी रेनफॉल अगर होगी तब IMD डिपार्टमेंट ऑनसेट ऑफ द मानसून डिक्लेयर करता है। एंड इन सच सिचुएशन जो कहा जाता है कि सेकेंड डे जब आता है देन वी से कि केरला के ऊपर ऑनसेट हो चुका है। लेकिन ये रेनफॉल का क्राइटेरिया है, इसके अलावा विंड और टेम्परेचर क्राइटेरियाज भी फुलफिल होने चाहिए। विंड फील्ड की बात करें तो जो वेस्टर्लीज हैं दे शुड बी अप टू 600 हेक्टोपैस्कल। सी जब हम 1 हेक्टोपैस्कल इज इक्वल टू 1 मिलीबार ऑफ प्रेशर, राइट? तो अगर हम इक्वेटर से 10 डिग्री नॉर्थ तक जाएं तो वेस्टर्लीज की जो हमारे पास जो वो है डेप्थ है वो 600 हेक्टोपैस्कल्स तक होनी चाहिए। एंड 55 डिग्री ईस्ट टू 80 डिग्री ईस्ट तक, हम इंडिया की बात कर रहे हैं यहाँ पे। और जो जोनल स्पीड है एयर की, दैट शुड बी बियॉन्ड 5 to 10 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड एंड 70 to 80 डिग्री लॉन्गिट्यूड। और यहाँ पे विंड्स की स्पीड 15 to 20 नॉट्स होनी चाहिए, बेसिकली 28 to 37 किलोमीटर पर आवर। एंड जो प्रेशर जो है हमारे पास दैट शुड बी अराउंड 925 हेक्टोपैस्कल। देन कम्स द रोल ऑफ टेम्परेचर, हीट। अकॉर्डिंग टू IMD, INSAT derived outgoing long wave radiations, इनकी जो वैल्यू है, बेसिकली आउटगोइंग लॉन्ग वेव रेडिएशंस क्या है,
the energy which is emitted to space by the Earth's surface, oceans and atmosphere. That the outgoing long wave radiations, it should be below 200 watt per square meter. ये कुछ वैल्यूज़ हैं जो कि काफ़ी डिटेल्ड हैं. यह आपको एज सच नहीं पूछा जाएगा बिकॉज यू डोंट वर्क इन IMD डिपार्टमेंट, बट यू शुड नो दैट येस देयर आर सम क्राइटेरियाज जो कि रेनफॉल, विंड और टेम्परेचर के परस्पेक्टिव में रहते हैं, जिसके बाद ही IMD डिपार्टमेंट ऑनसेट ऑफ द मॉनसून डिक्लेयर करता है. नाउ क्या ये अनयूजुअल है केरला कोस्ट के लिए दैट मॉनसून अर्ली आ गए हैं? सी, नीदर अर्ली मॉनसून और लेट मॉनसून, इट इज़ नॉट अनयूजुअल. इवन दो जो फोरकास्ट होता है फॉर दिस ईयर इज़ अर्लियर देन दैट वुड हैव बीन एक्सपेक्टेड. 2018 एंड 17 में केरला के अंदर जो मॉनसून था उसका ऑनसे 29 एंड 30 मई को ही हुआ. 2010 में 31 मई में हुआ. 2020 एंड 2013 में एग्जैक्टली 1 जून को हुआ. तो ये इतना अनयूजुअल नहीं है. नाउ रेस्ट ऑफ द ईयर्स गोइंग बैक टू 2010, तब जो ऑनसेट था वो डिले हो गया था. 2019 में भी 6 डेज़ का डिले था और प्रेडिक्ट किया गया था कि जून 6 को मानसून आएंगे, बट फाइनली जून 8 को जाके मानसून आते हैं. आगे बढ़ते हैं. हमारा नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल इंडिया नेपाल रिलेशन से रिलेटेड है. सो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इज़ गोइंग टू पे अ लॉन्ग डे विजिट टू लुम्बिनी ऑन द ओकेजन ऑफ बुद्ध पूर्णिमा. एंड 2014 के बाद से ये प्राइम मिनिस्टर की 5th विजिट है नेपाल में. लुम्बिनी में प्राइम मिनिस्टर माया देवी टेम्पल में विजिट करेंगे एंड देन ही विल डिलीवर एन एड्रेस एट बुद्ध जयंती. So that is all for this video lecture. Thank you so much for watching. I will see you all in my next one. Thank you.